Today we will study voice in very easy way. So first see the kinds of voice. So you can see here there are two kinds of voice. First active voice and second passive voice. In active voice, subject is given importance by the verb, and in passive voice, object is given importance by the verb. So viewers, as you all know, there are 12 tenses in total, but only 8 tenses will change in passive voice. Remaining 4 tenses will not change in passive voice. So let's see which are these tenses who will not change in passive voice. First, present perfect continuous tense. Second, past perfect continuous tense. Third, future continuous tense. And fourth, future perfect continuous tense. So viewers, these 4 tenses will not change in passive voice. So here you are going to study only 8 tenses which will change in passive voice. So viewers, before starting the first tense of passive, let's first see the subjects which will change in object in passive. You can see some subjects are here. I will change in me, we to us, you will be as it is, it will not change. They to them, he, him, she, her, it will be the same, and who to whom. So viewers, this will really help you when you will start making sentences in passive. So let's move on the first tense of passive, present indefinite tense. So we are starting from the present indefinite tense. First we are going to write the active voice. Subject plus V1 plus yes plus object plus complement. So we are not going to write all the structure here. We are only writing the affirmative structure, and according to this we are going to change in passive voice. You can see object plus is-mr plus V3 plus by plus subject plus complement. So this is the rule of present indefinite of passive. So the first example of present indefinite tense, we read our books. Students, you can see we read our books. First we will find its subject, object and verb. You can see we is the subject, our books is the object, read is the verb. You will need to find first the subject, object and verb. If you will find, then it will be very easy to change it in passive. So you can see ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आवर बुक्स पहले आ जाएगा, आवर बुक्स प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे आर, आवर बुक्स आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, यानी कि रीड का थर्ड फॉर्म रेड ही है, बाय एंड वी का ऑब्जेक्ट अस, वी आवर बुक्स आर रेड बाय अस। नेक्स्ट निगेटिव का हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेसन, वर्ब लर्न एंड सब्जेक्ट यू। सो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेंगे, यू डू नॉट लर्न योर लेसन तो हो जाएगा योर लेसन इज़ नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न लर्नड बाई, यू विल बी एज इट इज़ तो बाई यू, योर लेसन इज़ नॉट लर्नड बाई यू। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव का, डू यू नॉट लव हर। इंट्रोगेटिव अगर है तो वो इंट्रोगेटिव में ही चेंज होगा। डू यू नॉट लव हर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, सी, तो इज शी नॉट लव्ड बाई यू, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इज शी नॉट लव्ड बाई यू। नेक्स्ट है डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ। तो अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को हम पहले उठाते हैं,
और जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसा ही हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्लूरल है सॉन्ग्स, तो हम यहाँ आर यूज़ करेंगे। आर सॉन्ग्स नॉट संग, एंड यस स्टूडेंट्स यू कैन सी complement can also be written before, by and after the object. We can write the complement, so it will not affect your sentence. Are songs not sung now by Meera? नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड विच है, विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट। तो विच फ्रूट इज़ नॉट, इज़ क्यों लगाए, क्योंकि फ्रूट है, सिर्फ फल है। अगर फ्रूट्स होता तो यहाँ पे हम आर लगाते। विच फ्रूट इज़ नॉट लाइक्ड टू ईट बाई यू एंड क्वेश्चन मार्क। सो दीज वर द सेंटेंसेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को लिखिए और उनको चेंज कीजिए पैसिव में। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो मूव ऑन द नेक्स्ट टेंस। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव देख लेते हैं। एक्टिव इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। हम पैसिव का देखते हैं। एज इट इज़ ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग V3 बाई सब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट। यहाँ पे एक्स्ट्रा में सिर्फ बीइंग ऐड हुआ है, बीइंग एंड V3 बाई सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आफ्फर्मेटिव का एग्जाम्पल सबसे पहले, आई एम रीडिंग अ बुक। सो इसमें अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट, रीडिंग वर्ब एंड आई सब्जेक्ट। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम बनाना शुरू करते हैं इसको पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे अ बुक सिंगुलर है तो यूज़ होगा इज़, उसके बाद बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ रीड रेड, बाई एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आई इज मी। सो अ बुक इज़ बीइंग रेड बाई मी। सिर्फ आपको इस रूल में सारी चीज़ें पुट करनी है, अपने आप वो बनता चला जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं निगेटिव का, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम पहले लिखेंगे एज सब्जेक्ट। तो क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाई यू विल बी एड एज इट इज़। तो हमने उसको ऐसे लिख दिया, क्रिकेट इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाई यू। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव के लिए, आर द बॉयज़ राइटिंग एन एसे। आर द बॉयज़ राइटिंग एन एसे। तो एन एस से पहले आएगा, एन एस से सिंगुलर है तो इसके लिए इज़ यूज़ होगा। तो देखिए इज़ एन एस से बीइंग रिटन बाय द बॉयज़ एंड क्वेश्चन मार्क। आर द बॉयज़ राइटिंग एन एस से, तो इसका पैसिव हो गया इज़ एन एस से बीइंग रिटन बाय द बॉयज़। इजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आर दे नॉट एब्यूजिंग यू। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया यू, यू आएगा पहले, यू के लिए आर यूज़ करते हैं। आर यू नॉट बीइंग एब्यूज्ड बाई, एंड दे का ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं देम, तो यहाँ देम हो गया क्वेश्चन मार्क। आर यू नॉट बीइंग एब्यूज्ड बाई देम। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, वाई इज शी हेल्पिंग यू। क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, वाई शी हेल्पिंग यू। तो जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले ही रहेगा, उसको हम नहीं चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज होना शुरू होगा। देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू के लिए आर लिखेंगे। तो वाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाई, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सी यू विल राइट हर। तो वाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाई हर। सो दिस वाज योर लास्ट सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। सो स्टूडेंट्स अगेन रिपीट इट, object plus is mr plus being plus V3 plus by plus subject plus complement. This is the rule of your passive of present continuous tense. Okay, so practice is more and more. So meet you in the next video. Till then, stay safe, stay at home.